Start with the holy name of Almighty Allah, who is most merciful and beneficent. This is Mohammed Rafiq Mahesar. Dear student, today we will continue our talk, the English text of class 7. Today we will go through the unit 2, text 1, the paper Cranes of Peace. Dear student, today we will go through reading for understanding, and today we will discuss page number 31. There are some questions. We will solve these questions and we will find out their best answer. So shall we start our today's topic? Here question number 1 is, what is origami and what are its essential rules? Dear student, in the previous lecture, as we have discussed, that origami is the ancient, it's a very ancient art of paper folding, and it started in 6th century from China, but now it practiced in Japan. So its two essential rules are these, that neither scissors nor glue is used. Dear student, origami एक आर्ट है पेपर फोल्डिंग का जो जापान में एक्चुअली ये 6th सेंचुरी में चाइना से स्टार्ट हुआ, लेकिन आज का जो प्रैक्टिस ज़्यादा हो रहा है वो जापान में हो रहा है. इसके टू एसेंशियल रूल्स ये है कि सिजर्स मीन हम कैंची वगैरह यूज़ नहीं कर सकते और ग्लू स्टिक के लिए हम पेपर्स को स्टिक भी नहीं कर सकते. सो दे आर टू एसेंशियल रूल्स ऑफ दिस origami. Here is the question number 2. What did the Japanese legend have to say about the folding origami? Mean there was a legend. Legend mean storyteller. उसने क्या कहा आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग के बारे में? So its answer is this. Legend say that whoever folds 1000 origami cranes will live a long life. Legend ने कहा अगर कोई 1000 origami cranes को फोल्ड करेगा तो वो लॉन्ग लाइफ जिएगा, मीन उसकी जो लाइफ होगी वो ज़्यादा होगी. There is another question, question number 3. What happened in Hiroshima in Japan in 1945? Dear student, in 1945 में जापान के एक शहर हिरोशिमा में एक बहुत खतरनाक अटैक हुआ था. यूएसए ने किया था. यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने टुवर्ड द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, जब सेकेंड वर्ल्ड वार की एंड हुई थी 1945 में, तो यूएसए ने एक एटॉमिक बम एक्सप्लोड किया था. दैट वाज अ अनटेस्टेड वेपन, जो पहले कभी टेस्ट नहीं किया गया था. टू सरेंडर द जापान, मीन जापान एक राइजिंग पावर था, बहुत पावर में था, उसको सरेंडर करने के लिए यूएसए ने वो एक्सप्लोड किया था. तो उस एक्सप्लोड के खतरनाक नतीजे सामने आए. इंस्टेंटली 10,000 पीपल वर किल्ड. 10,000 जो लोग थे वो इंस्टेंटली वो मर गए और डेथ का जो रेशो था वो बढ़ गया. मीन ऑलमोस्ट 18 lakhs to 20 lakhs नेक्स्ट ईयर्स तक. मीन जो डेथ या कैजुअलिटी का जो रेशो था वो नेक्स्ट ईयर्स में मीन 18 lakhs और 20 lakhs तक जा पहुंचा. और लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंस ये थे कि वो लोगों को एक डिजीज हुई, एक बीमारी हुई जिसको हम एटॉमिक बम डिजीज भी कहा जाता था या ल्यूकेमिया. So its answer is here. USA dropped a nuclear bomb in Hiroshima. Hiroshima is a city of Japan. Thousands of people killed. जो 1000 people थे वो किल हो गए थे इंस्टेंटली फौरी तौर पे, and death rose to 18 lakhs and 20 lakhs. Here is another question. Question number 4. What were immediate and long term consequences of this event? Mean immediate mean उस टाइम और long term क्या consequences थे उस event के? Dear student, this answer 1000 of people killed immediately mean 1000 लोग जो थे वो thousands mean हजारों लोग वो immediately at that time were killed, वो मारे गए थे. and 1000 people got leukemia. leukemia एक ब्लड कैंसर है जो कि रेडिएशंस के थ्रू उन लोगों को हुई थी, जो न्यूक्लियर रेडिएशन थी. तो वो जब लोग इनहेल कर रहे थे, ब्रीथिंग कर रहे थे, उनको वो एयर आ रही थी और वो जो एयर थी वो मिक्स हो रही थी ब्लड के साथ, तो उन लोगों को ल्यूकेमिया हो गया. मीन ल्यूकेमिया जो था वो एक कंसीडर किया जा रहा था 1945 में एक डिजीज ऐसी थी जिसका कोई भी इलाज नहीं था. बट नाउ डेज ल्यूकेमिया इज क्यूरेबल. आज के दौर में ल्यूकेमिया जो है वो क्यूरेबल है, वो काबिल इलाज है और उसका इलाज भी पॉसिबल हो सकता है. So here is another question. Question number 5. Why did Satko develop a leukemia? Dear student, here Satko is the name of girl that she was a courageous girl in Japan. She was athletic, जो एक एथलेटिक गर्ल थी.
तो उसको ल्यूकेमिया क्यों डेवलप हो गया। मीन डियर स्टूडेंट, एज वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 कि ल्यूकेमिया जो है वो एक डिजीज है दैट काज बाय ड्यू टू रेडिएशंस। जो एटॉमिक बॉम्ब की रेडिएशंस थी उसके काज में वो ल्यूकेमिया हुई थी। लोगों ने उस एयर को इनहेल किया, जब वो ब्लड के साथ मिक्स हो गई और लोगों को वो ल्यूकेमिया हो गई। ल्यूकेमिया मीन ब्लड कैंसर। तो सदको सुस्की जो थी वो भी एथलीट थी, वो प्रैक्टिस कर रही थी अपने रेस के लिए। तो एक मॉर्निंग टाइम का वक्त था जब वो उसने फील किया डाइजीनेस और वो कोलैप्स, वो गिर गई। और व्हेन शी डायग्नोस्ड from medical examination and she found that she is a victim of leukemia, blood cancer. So this answer is because of radiations of nuclear rays. जो nuclear rays थी, वो जो radiation थी nuclear rays की, उसकी वजह से उस सदको सुस्की को वो बीमारी हुई थी जिसका नाम था leukemia. Here is another question number 6. How did Sadko's wish change? Actually, dear student, when she was in a hospital, her one of best friend told him the story of old legend. वो जो legend का क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पढ़ा है, जापान में इस legend ने बहुत रोल प्ले किया था towards the end of World War II 1945 में। तो वो बता रहा है कि अगर कोई भी whoever forced the 1000 paper crane, he will live a long life। अगर उस थ्योरी को सदको सुस्की वो जो फिलोसफी थी उस लेजेंड की, तो किसी दोस्त ने सदको सुस्की को बताया कि अगर तुम 1000 पेजेस को ऑर्गेनिक क्रेन्स को फोल्ड करोगी तो माइट भी हो सकता है तुमको जिंदगी ज्यादा हो या तुम ज्यादा जिंदगी को एंजॉय कर सको। उसकी जो फर्स्ट विश थी वो ये थी कि मैं अगर ये 1000 पेजेस को ऑर्गेनिक क्रेन्स को फोल्ड करके कर जाऊंगी, I do successfully, then I may live a long life। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने वो पूरे पेजेस नहीं किए और वो बीच में मर गई। शी गॉट डाइड। हर विश वाज टू लिव अ लॉन्ग लाइफ। उसकी जो विश थी वो लॉन्ग लाइफ थी, लेकिन हर विश सडनली चेंज, उसकी विश जो है वो सडनली चेंज हो गई। नाउ शी विश दैट दिस टाइप ऑफ एट्रोसिटी शुड नेवर हैपन अगेन। वो फील कर रही थी, वो विश कर रही थी कि इस टाइप की एट्रोसिटी जो है, एट्रोसिटी का मतलब एक्सट्रीम क्रूरटी, जो ज़्यादा क्रूरटी है, जो क्रूअल एक्ट है, ये कभी नहीं हो। और वार जो है वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं हो। और वार में बच्चे और बड़े मेन वार नहीं होनी चाहिए और बच्चे और बड़े जो हैं वो महफूज रहने चाहिए। देयर शुड बी अ पीस, देयर शुडंट बी अ कॉन्फ्लिक्ट। सो इस आंसर हियर हर विश वाज टू लिव अ लॉन्ग लाइफ। उसकी जो विश थी वो विश कर रही थी लॉन्ग लाइफ के लिए, बट इट चेंज, वो चेंज हो गई। नाउ शी विश दैट दिस काइंड ऑफ एट्रोसिटी should never happen again। मीन वो फील कर रही थी, वो विश कर रही थी कि दिस टाइप ऑफ एट्रोसिटी कभी नहीं हो। Here is another question number 7 and last question। How her friends all over Japan and world help to keep her story and her wish to alive। मीन जो लोग थे उसके जो फ्रेंड्स थे, यंग मैन थे, तो उनने जापान में या पूरी दुनिया में क्या काम किया, कौन से कंट्रीब्यूशन किए सदको सुस्की के विश को या उसकी स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर इज दैट यंग पीपल ऑल ओवर द जापान एंड वर्ल्ड, जो यंग लोग थे जापान और दुनिया में से, दे हैव कलेक्टेड अमाउंट, उन्होंने अमाउंट को कलेक्ट किया फॉर द प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के लिए जिसका नाम था सदको विल नेवर डाई। सदको की जो विश है हम उसको कभी भी मरने नहीं देंगे। हर विश was to become free from war। उसकी विश ये थी कि हम जंगों से फ्री हों और कभी भी this type of atrocity never happen, ये जो atrocity है वो कभी नहीं हो। So its answer is here young people contributed, जो young लोग थे उन्होंने contribute किया for project which would ensure that the Sadko would never be forgotten। उस प्रोजेक्ट में एक मिशन था कि सदको का जो मिशन है, उसकी जो विश है, हम उसको कभी भी मरने नहीं देंगे। स्टैच्यू ऑफ सदको वाज प्लेस्ड इन जापान। एक सदको का स्टैच्यू भी प्लेस किया गया है उस जापान में। देयर इज इट इज अ फ्लेमिंग, वो जो जल रहा है, एंड इट विल एक्सटिंग्विश्ड ओनली व्हेन देयर वाज अ नो वार। वो तब ही बुझेगा जब देयर वुड बी नो वार।
So dear students, all about today's reading from Descending, the page number 31. I hope you will enjoy this lecture and thank you for listening to today's video. Thank you.